Hello students, in today's lecture, Hello students, welcome to my maths class. In today's lecture, we will study about the distance between 2 points, but now in 3 coordinate system. Otherwise, this formula you have already studied in your 10th class in two-dimensional geometry. So here you can see this is the point P with the coordinates x1, y1, z1, and point Q has the coordinates x2, y2, z2. Now the formula to find out the distance between these 2 points is this, that is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Now I'm taking the questions of exercise 12.2 directly, which are based on this distance formula. And the question number 3 में first part में you have been given 3 vertices A, B and C, and you are to check whether these are the vertices of these 3 vertices are of an isosceles triangle. We know that in isosceles triangle 2 sides are equal. So we will find out all the 3 sides of the triangle by using the distance formula. And if 2 sides would be equal, then it would be isosceles triangle. So first of all, AB. A and this is B. So x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square has been applied here. And by applying this, we have calculated that this AB is root 18. Root 18 means 3 root 2. And then BC kitna aaya hai? That is also 3 root 18. अब AC, वैसे तो अब 2 sides are equal, ये आइसोसेलेस तो हो ही गया है. चलिए फिर भी हमने AC निकाला. बाई चांस सपोज करो AB के बाद AC निकाल लेते हम और फिर BC निकालते. तो हमने ये देखा कि 2 sides AB and BC are equal, but AC is not equal. Therefore, it is an isosceles triangle. Now, second part of this question is that in this time you have been given 3 vertices of a triangle and you are to prove that these are of a right angle triangle. ठीक, right angle triangle में क्या होता है? आप पहले sides निकाल लेंगे. Similarly, you have calculated in that first part AB निकाला है. AB के लिए this minus this is x1 y1 z1, this is x2 y2 z2. तो हमने x2 minus x1 किया उसका होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 किया उसका होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 किया उसका होल स्क्वायर. ठीक है, एंड यू हैव कैलकुलेटेड दैट इज रूट 18. अब इसके बाद हमने ऐसे ही BC कैलकुलेट किया. BC जब आप कैलकुलेट करेंगे, अब x1 y1 z1 ये बन गया और x2 y2 z2 ये बन गया. फिर दोबारा से वैसे करेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर. देखिए यहाँ पर फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, एंड देन z2 माइनस z1 होल स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया. दैट इज ऑल्सो रूट 18. फिर हमने निकाला AC A और ये C. फिर दोबारा वही आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर देन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर देन z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. इसको हमने कैलकुलेट किया है तो रूट 36 आया. अब आप क्लियरली देखिए कि ये 2 साइड्स अगर हम इनका स्क्वायर करें, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल व्हेनेवर इट कम्स देन पाइथागोरस theorem comes into role. And here AB square is 18 and BC square is also 18. क्योंकि जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा. and AC square is square of root 36, that is 36. यानी अगर हम इन दो को ऐड करेंगे, इन दो के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे, you will get it equal to the square of this AC, है ना? AB square plus BC square we have calculated, that is 36, and AC square is also 36. What does it mean?
AC square is equal to AB square plus BC square. इसका मतलब Pythagoras theorem is now proved here. Hence, we can say this is the right angle triangle. और एंगल कौन सा होगा? जो भी आपका ये हाइपोटेन्यूज बना है इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? AC के अपोजिट एंगल B होगा, तो एंगल B जो है आपका वो 90 डिग्री है, ठीक है, बाय द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। थर्ड पार्ट जो इसका है, इसमें आपको प्रूव करना है कि यहाँ पर 4 vertices this time you have been given. Now you are to prove these are the vertices of a parallelogram. देखिए ये आपको A, ये B, ये C और ये D दिए। This type of question और also you have done in your 10th class. वहां पर भी, लेकिन वहां पर इन आपके जो पॉइंट्स होते थे 2D में होते थे, यानी कि वहां पर 2 कोऑर्डिनेट्स होते थे x एंड y। फर्क सिर्फ इतना है, डिफरेंस इज ओनली दिस दैट हियर in 3D there is one more coordinate has come into existence, that is the z coordinate. अब इसमें आपने वैसे ही करना है, अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है कि these are the vertices of the parallelogram, तो आपने पहले तो सारी साइड्स निकाल लेनी है, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ठीक है। और उसके बाद क्या करना होता है, डायगोनल्स इक्वल प्रूव कर देने हैं। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूव कर दो। पहले तो साइड्स निकाल ली हमने, ए बी साइड निकाल ली, बी सी, वैसे ही जैसे अभी आपको पीछे बताया डिस्टेंस फॉर्मूला करके आपने ए बी बी सी सी डी एंड ए डी ये सारे आपने साइड्स निकाले हैं, है ना। हाँ जी, तो अगर पैरेललोग्राम अगर आपने प्रूव करना होता है तो क्या करना होता है इसमें कि एक तो आपका सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये देखिए ये जो फिगर बनी है, मैंने ए बी साइड को सी डी के इक्वल और बी सी को ए डी के इक्वल शो करने के लिए बोला है। लेकिन अगर ये पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स इसके अनइक्वल होंगे और रेक्टेंगल के केस में ये इक्वल होंगे। ऐसे ही रोम्बस के केस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। एंड अगर कोई स्क्वायर बन जाता है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। याद रखना डायगोनल्स सिर्फ उसी में इक्वल होते हैं जिसमें कॉर्नर के एंगल्स आपके 90 डिग्री पर होते हैं। यहाँ पर कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी आपके जो है दीज आर नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए इसके डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होंगे, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। अब जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। क्यों उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं? क्योंकि उसके ये जो एंगल्स हैं, एंगल ए बी, एंगल सी, एंगल डी, इनकी मेजर जो है, मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट्स व्हाई। तो हमने क्या करना है, सिर्फ अपोजिट साइड्स को यहाँ पर इक्वल करना है। ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, सी डी ले लिया, ए डी ले लिया, तो हमने देखा ए बी जो है यहाँ पर सी डी के इक्वल आ रहा है, दोनों की मेजरमेंट 6 है। ऐसे BC आपका जो है √43 है और आपका CD के बाद ADB, सॉरी BC के साथ ADB आपका कितना है, √43 है। तो ये हमने दिखा दिया कि AB इज इक्वल टू CD, ये दोनों 6 हैं, एंड BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू, ये क्या है। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है exercise 12.2. Find the equation of the set of the points which are equidistant from the point 1, 2, 3 and 3, 2, -1. यानी कि आपको ऐसे पॉइंट्स जो ये 2 गिवन पॉइंट्स से इक्वल डिस्टेंस पर हो, उन सभी पॉइंट्स को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उनसे हमें क्या एक फिगर बनेगी, उस फिगर का इक्वेशन चाहिए। सपोज दीज आर द पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर ये 2 पॉइंट्स हैं तो जरूरी तो नहीं कि सिर्फ एक, इन 2 पॉइंट्स को, कई बार बच्चे क्या करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं कि भाई ये 2 पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो इसका जो ये पॉइंट मिडिल वाला पॉइंट है वही इससे इक्वल डिस्टेंस पर हो सकता है। नो 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 नो, देयर आर मेनी अदर पॉइंट्स आल्सो अवेलेबल which may be at the equal distance. अब जैसे कि सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट है P, ठीक है, इस पॉइंट की डिस्टेंस जितनी इस पॉइंट P से है
और Q से, सपोज दिस इज पॉइंट P एंड द अदर वन पॉइंट इज Q, ठीक है, पहले इसको समझो। ये पॉइंट है आपका P और दूसरा पॉइंट है ये Q, ठीक है। अब हम कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स लेंगे विच आर एट द इक्वल डिस्टेंस, जो कि इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। ये देखो पहला पॉइंट आया, ये इसकी डिस्टेंस P से जितनी है उतनी ही Q से है, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं यही पॉइंट हो, एक और पॉइंट सपोज करो यहाँ पर मेरे पास आई एम गेटिंग वन मोर पॉइंट, इसकी डिस्टेंस सपोज यहाँ से 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। आई कैन गेट वन मोर पॉइंट, ये आपका आ गया, इसकी डिस्टेंस यहाँ पर है 4.8, इसकी भी 4.8 है यहाँ से। अच्छा एक और पॉइंट हमें मिल गया, सपोज करो ये वाला पॉइंट, इसकी डिस्टेंस यहाँ से 4.6 है, ये भी 4.6 है। So it means we can have infinite points which may be at the equal distance from this two given points P and Q. अब ये जो given points से equal distance पर जो points हैं, ये देखो हमारे पास इतने सारे points आ गए। इन points के collection को अभी these are not the only points, there may be so many other points also. तो अब इसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, ये देखो ये बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है। इफ यू ज्वाइन, मतलब अगर हम इनको ज्वाइन करके देखें तो ये क्या बन रहा है, वी आर गेटिंग विद दिस लाइन। अब ये लाइन कैसी है, वी आर टू फाइंड आउट द एक्चुअली इक्वेशन ऑफ दीज पॉइंट्स। मान लो ये जो पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट अगर हम लेते हैं, ये पॉइंट है x, y, ये पॉइंट x, y है जो कि इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मींस ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, all the points on this line at the equal distance from this point P and Q। ये देखो, ये मैं बना नहीं पा रही इसमें सही से, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट है आपका ये A, एक्चुअली यहाँ पर इसको P लिया गया है और इसको A लिया गया है, इसको A लिया है मैंने क्वेश्चन में और इसको मैंने B लिया है, ये पॉइंट को B लिया है, ठीक है। तो यानी कि P से A की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही P से B की डिस्टेंस है। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, देयर आर मेनी पॉइंट्स। ये ऐसे P पॉइंट्स कितने हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनकी डिस्टेंस A से और B से इक्वल होगी। अगर उन पॉइंट्स P को अगर हम कलेक्टिवली लें तो हमें जो एक इक्वेशन मिल रही है, ये वाली इक्वेशन, वो हमें बतानी है कि क्या होगी, ठीक है। वैसे दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर 9th क्लास दैट दिस line will be the perpendicular bisector of the line which will be obtained by joining these two points AB। ये जो AB को ज्वाइन करने पर जो लाइन आती है उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ये लाइन। खैर हमें तो अभी ये वाली लाइन निकालनी है, कलेक्शन ऑफ दीज पॉइंट्स, ये जो बनती है ये इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमने क्या लिया, P इज द पॉइंट x y z, क्योंकि x y z आर इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोला गया है कि P से A का जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस P से B है, तो PA इज इक्वल टू PB। अब A पॉइंट 1 2 3 है और B पॉइंट 3 2 -1 है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -2 होल स्क्वायर प्लस z -3 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट इक्वल टू x -3 होल स्क्वायर y -2 होल स्क्वायर z प्लस 1 होल स्क्वायर, ये सारे आपस में इक्वल हैं, ओके। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप, ठीक है, आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो आप यहाँ x -2 होल स्क्वायर और सॉरी y -2 होल स्क्वायर एंड y -2 होल स्क्वायर विल बी कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड, रिमेनिंग यू विल सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट वन दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आएगी आपकी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द set of the points which are at the equal distance from the point given two points, okay। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P, the sum of whose distances from these two given points is equal to 10। यानी अगर हमें ये पॉइंट A दिया है, ये पॉइंट B दिया है, ये पॉइंट आपको A गिवन है, ये आपको B पॉइंट गिवन है, और इस A और B से जो पॉइंट्स आपने वो लेने हैं जिनसे इनकी, मान लो ये पॉइंट है, अब इसकी डिस्टेंस A से, ये पॉइंट P है, ठीक है,
ए से पी की डिस्टेंस प्लस ये ए से जो पी की डिस्टेंस है ये हमने लिया d1, ठीक है, ये p है, सपोज करो ये यहाँ p है, तो ये डिस्टेंस है आपकी d1, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से p से लेकर b तक की जो डिस्टेंस है ये b पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है d2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया है, आपके वो सारे पॉइंट्स जिनका सम इन डिस्टेंसेस का सम 10 है, सपोज करो ये 4 है ये 6 है। अब यहाँ पर भी तो एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 6 हो और यहाँ से 4 हो, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहां से इन ए से बी तक का डिस्टेंस, उन पॉइंट्स का सम जो है डिस्टेंसेस का वो 10 होगा। मान लो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से ए से पी की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस 5 इधर 5 इधर, तो 10 है। तो आपको वो पता करना है कि उसकी इक्वेशन, वो जो जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनको कलेक्टिवली अगर हम लेते हैं तो वो जो पाथ बनता है उसकी इक्वेशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 10 है। आपके पास पी क्या है, एक्स वाई जेड है, हमने लिया है, और पॉइंट ए हमें दिया 400, पॉइंट बी हमें दिया -400। यू नाउ फाइंड आउट दिस पी टू ए, 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस जेड होल स्क्वायर, ऐसे इसका P से B आप फाइंड आउट करेंगे, उनका डिस्टेंस लिया इक्वल टू 10 है। ठीक, अब एक चीज ध्यान से सुनिए बेटा, कभी भी दो साइड आपके पास स्क्वायर रूट आ जाते हैं, ओके, विद प्लस और माइनस साइन इन बिटवीन, ठीक, then it's better to take one this expression on the other side to just to make our calculations easier। इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो हमने भी वही किया है, हमने क्या किया है, ये स्क्वायर रूट के साथ जो एक्सप्रेशन, वी हैव टेकन इट टू द अदर साइड एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अब आपने जब इसको स्क्वायर किया तो यहाँ पर ये तो स्क्वायर करने के बाद इसका स्क्वायर रूट तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, but here a minus b whole square will be applied, so a square plus this b whole square minus 2 into ab होगा। इसको when you simplify this you will ultimately left this, और इसमें से भी 4 कैंसिल हो रहा है, then again we want to remove this square root, अभी भी हमारे पास स्क्वायर रूट है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने squaring both side we have done once again and again we have simplified and we have obtained this equation। this is the equation, ये वो इक्वेशन आएगी आपके पास, ठीक है, इन पॉइंट्स की, इन पी पॉइंट्स की, जो कि हमें ए और बी से जिनकी डिस्टेंस का सम 10 होगा। हाँ जी, क्वेश्चन ये एक एक्स्ट्रा मैंने लिखा है कि शो दैट दिस पॉइंट O -1 4 -3 is the circumcenter of a triangle formed by the points A 3 2 -5, B -3 8 -5 and C -3 2 1। देखिए, in this question first of all you should know what is the circumcenter। Circumcenter is the point of concurrence, this point O is the point of concurrence of all the perpendicular bisectors of all the three sides of the triangle। यानी कि BC का जो perpendicular bisector है, AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर आकर मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, सरकम सेंटर। और जो सरकम सेंटर होता है उसको अगर हम सेंटर ले और ये OA, OB या OC को हम मेजर करते हैं तो दीज आर सेम, इनकी, क्योंकि वही बात है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या भी बताया था आपको पिछले क्वेश्चंस में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो भी पॉइंट होता है उनकी डिस्टेंस इन पॉइंट से सेम होती है। मान लो अगर मैं कहूँ कि ये बी और सी पॉइंट है तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। ऐसे सेम इज फॉर दिस, सेम इज फॉर दिस, तो यानी कि O से B की डिस्टेंस, O से C की डिस्टेंस एंड O से A की डिस्टेंस सेम होगी, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम चाहें तो हम इसको सेंटर मानकर और OA या OB और OC को रेडियस मानकर हम एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आई हैव ड्रॉन इट हियर, यू कैन सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको शो क्या करना है कि O is the circumcenter formed by these three vertices of the triangle।
यानी कि ए बी सी तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं और प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट हमें ओ दिया है ये इसका सरकम सेंटर है। अब भाई अगर ये सरकम सेंटर है ओ, तो ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से बी की डिस्टेंस और ओ से सी की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में वही किया गया है। हमने सबसे पहले ओ से ए का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, दैट इज √24। फिर हमने ओ से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, दैट इज ऑल्सो √24। फिर ओ से सी का, तो ऑल द साइड्स, ऑल दीज ओ ए, ओ बी एंड ओ सी डिस्टेंसेस आर सेम। दिस implies O is the circumference of the triangle ABC. Hence it is proved. अच्छा, अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि find the point in the YZ plane which is equidistant from these three given points. आपसे बोला गया है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, इनसे इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट बताइए जो कि YZ प्लेन में लाई करता है। अगर मेरा पॉइंट जो मुझे चाहिए दैट लाइज इन द YZ प्लेन, then it can be written as 0, y, z because it lies in the YZ plane. Therefore, it would be written as 0, y, z. As per the question, the distance between P and the first point, P and the second point, P and the third point are same. ये सेम डिस्टेंसेस हैं। तो हमने इन पॉइंट्स को ए बी सी ले लिया, तीनों पॉइंट्स को, तो इट मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी होना चाहिए। तो हमने पी ए इज इक्वल टू पी बी पहले लिया, तो पी ए कैलकुलेट कर लिया 0 - 1 का स्क्वायर y प्लस 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -1 होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू पी बी। ऐसे कैलकुलेट किया, तो एंड स्क्वायर्स ले लिए इनके, तो इनका स्क्वायर रूट साइन कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल, बाय सिंप्लीफाइंग दिस वी आर गेटिंग वन इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन y एंड z में वी हैव ऑब्टेन। लाइकवाइज जैसे पी ए पी बी के इक्वल है वैसे पी बी पी सी के भी इक्वल है। इसका आपका पी ए पी सी के भी इक्वल है, तीनों इक्वल है ये आपके। ठीक है, नाउ आई हैव टेकन पी बी इज इक्वल टू पी सी। PB is equal to PC. When you will take and simplify, you will get one more equation in terms of y and z, and this is also in terms of y and z. This equation is also in terms of y and z. So we can simplify these two equations by applying the elimination method to get the values of y and z. So ये y z की आपकी values आ गई, hence it is also solved. Okay.